Hello, good morning, students. Now I start the remaining part of the story and the adventures of Toto, chapter second, from your book Moments. It is very interesting story of a red monkey which was purchased by a grandfather from a Tonga driver, and they made them hide at a place where so that grandmother could not see. Now further what happens, we start. Open your book on page number 9. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in a stable where he had for a companion the family donkey Nana. Oh, Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. उसको he was shifted to a stable when grandmother accepted him. On Toto's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. To his surprise, he found Nana. Who is Nana? Nana is a donkey without apparent cause. Without apparent cause. Apparent means clear. Without any reason. Pulling at her halter. Halter means here a rope or strap placed around the head of a horse or other animal, used for leading or tethering. एक रस्सी उस होती है जो घोड़े या किसी एनिमल के जो है सिर पे बांध दी जाती है, उसको लेके आगे चलने के लिए. That is called halt. And pulling at her halt and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. यानी कि जब 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 टोटो की अस्तबल में पहली रात थी तो दादाजी उसको देखने के लिए गए कि वो आराम से है या नहीं. वो ये देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि नाना बिना किसी कारण के अपने गले के पट्टे को खींच रही थी और अपने सिर को भूसे के एक बंडल से अधिक दूर रखने की कोशिश कर रही थी. एंड ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हाउंचेज. हाउंचेज मीन्स बैक पार्ट ऑफ द बॉडी. उसके पीछे के हिस्से पर नाना उसको थपड़े मार रहे थे. एंड शी जर्क्ड बैक. नाना हियर आ शी डोंकी. ये शी डोंकी है यहाँ पे. शी जर्क्ड बैक. जर्क्ड बैक मीन्स झटके से पीछे हटना. शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर. टोटो को घसीटते हुए अपने साथ वो पीछे हट गई, है ना. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. And Toto and Nana never became friends. इस तरह से वो टोटो और नाना कभी भी फ्रेंड नहीं बन सके. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given by grandmother for his bath. उस बहुत तेज़ ठंड पड़ रही थी. उसकी ग्रैंडमदर ने टोटो को नहलाने के लिए गर्म पानी दिया एक बाउल में. He would cunningly test the temperature with his hand, and what he does, he tests the temperature of the water with his hand cunningly.
very cleverly, then gradually step into the bath. First one foot, then the other, as he had seen me doing. जैसे हम बड़े टब के अंदर पहले एक पैर रखते हैं और फिर दूसरा, और उस फिर हम धीरे धीरे से नहाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से इन द सेम वे द रेड मंकी वॉज ऑल्सो डूइंग, द टोटो मंकी वॉज डूइंग द सेम। मंकीज आर पॉपुलर फॉर कॉपिंग। मंकीज बंदर जो है नकल करने के लिए फेमस हैं। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, जब तक कि उसकी गर्दन तक पानी नहीं आ जाता, यानी कि वो धीरे धीरे नहाने के लिए घुस जाता जब तक कि पानी उसकी गर्दन तक नहीं आ जाता। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. जब वो नहा लेता था तो ठंड के मारे वो किचन में जो आग जलती है उस वहाँ वो दौड़ पड़ता था अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन laughed at him during his performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. If anyone laughed at him by observing his ridiculous activities, then what he did, he became hurt. He became hurt and his feelings would be hurt, and he used to refuse to go to bed. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन टोटो ने अपने आप को मतलब उबलते हुए पानी में क्या किया कि जल गया, वो जिंदा ही उबाल लिया। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, रसोई में आग पर रखी हुई एक केटल में चाय के लिए पानी उबालने के लिए रखा गया। और टोटो जब देखिए कि टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, जब उसको कुछ करने को नहीं मिला, ही डिसाइडेड टू रिमूव द लिड मीन्स कवर ऑफ द केटली। फाइंडिंग, उसने क्या किया कि उसको हटाने की सोची। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म अनफ फॉर अ बेथ, ही गॉट इन with his head sticking out from the open kettle, and what happened कि पानी को नहाने लायक गर्म पाकर उसमें घुस गया और अपना सिर खुली हुई केतली से बाहर निकाले रखा। एंड दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, ये कुछ समय के लिए तो अच्छा लगा। until the water began to boil, जब तक पानी उबलने नहीं लगा। टोटो then raised himself a little, टोटो ने फिर अपने आप को थोड़ा उठा, है ना। लेकिन क्या हुआ कि बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, लेकिन बाहर उसको ठंड लगने लगी तो वापस अंदर हो गया वो। एंड sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और वो क्या कि वो ऊपर नीचे फुदकता रहा जब तक कि दादी माँ वहाँ नहीं पहुँच चुकी, और आधे उबले हुए उस केटली में से उसको बाहर नहीं निकाल दिया जब तक वो वहाँ पर ही उछल कूद करने लगा, ऊपर नीचे होने लगा वाटर में ही। If there is a part of the brain, if there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. देखिए ये जो चीज़ है ये बताना चाहता है कि अगर ब्रेन का कोई ऐसा हिस्सा जो ख़ास तौर से शरारत को और
के लिए बना हो, तो टोटो में वो हिस्सा सबसे ज़्यादा था। यानी कि ब्रेन का एक पार्ट ऐसा भी होता है जिस वेयर आवर इनर चाइल्ड लिव्स, जहाँ हम हमारे अंदर का जो बच्चा होता है वो रहता है, और वो चाहे कितनी उम्र हो जाए, लेकिन एक उम्र तक वो एक चाइल्ड होता है, इन्फेंट चाइल्ड, वो हमारे अंदर भी होता है। इसी तरह से टोटो के अंदर तो बहुत ज़्यादा था ऐसा। शैतानी करने के लिए बच्चे मशहूर हैं। दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। वो हिस्सा ब्रेन का शैतानी का और मिसचीफ करने का वो टोटो के अंदर ज़्यादा डेवलप था, ब्रेन का वो हिस्सा। ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस वेन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम। ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टेयर अ होल इन इट। देखिए कि वो जब भी मेरी कोई मतलब वो हमेशा चीज़ें तोड़ता फोड़ता रहता था। जब भी मेरी कोई बुआ उसके पास आती, वो उनके कपड़े पकड़ने की पूरी कोशिश करता और उनके कपड़ों में वो फाड़ कर जो है छेद भी कर देता था। वन डे at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. वन डे, एक दिन के खाने के समय पुलाव की एक बड़ी सी तश्तरी जो भोजन की मेज के बीच रखी हुई थी. It was lying in the center of the dining table. What happened? We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. तो क्या है कि हमने घुसते ही टोटो को चावल को स्टफिंग मीन्स ठूंसना. क्या ठूंस के, जैसे हम कोई बोरे या कोई थैली के अंदर कोई कपड़े को ठूंस के भर देते हैं, इस तरह से वो ठूंस कर खा रहा था. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, माई ग्रैंड मदर क्राइड, चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर. टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर. वन of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. And के मेरी एक बुआ आगे की ओर झपटी तो टोटो ने उनके मुंह पर पानी का एक गिलास फेंक दिया. And when grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. When Dadaji, grandfather, arrived, due to his fear, what he did, he picked up a dish of pulao and escaped through the window. We found him in the branches of द जैकफ्रूट ट्री. और हमने फिर उसको जैकफ्रूट ट्री की ब्रांचेस, पेड़ों के ऊपर हमें वो मिला. द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. वो डिश लेकर के कहाँ चला गया था? जैकफ्रूट के पेड़ के ब्रांचेस के ऊपर. ध्यान रखना ये. और वो डिश जो थी पुलाव की, वो उसके हाथ में थी. ही रिमेन्ड देयर ऑल आफ्टरनून, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, determined on finishing every grain. And what happened? He remained there all afternoon, and each one grain of the rice he determined to finish. And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. ये बड़ी मार्वलस एंड बड़ी लॉफ्टर है ये हंसी की बात कि उसने क्या किया. दादी माँ को चिढ़ाने के लिए उन जो उसके ऊपर चिल्लाई थी, उसने तश्तरी क्या हुआ कि पेड़ के नीचे से फेंक दी, और वो जो बाउल या डिश थी वो कई 100 टुकड़ों में हो गई, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो गई. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट
we could keep for long. टोटो, वास्तव में टोटो जो था वो एक ऐसा पेट नहीं था कि जिसको बहुत समय तक वहाँ रखा जाए, क्योंकि बिकॉज ही वॉज वेरी नॉटी एंड नोटोरियस एंड मिस्चीवियस. इवन grandfather realized he was so mischievous that even grandfather realized that we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. Because they were not well to do. Well to do means they were not very rich people who could afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. इतने अमीर नहीं थे कि वो जो है इन सब चीज़ों का लॉस झेल सकते थे. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 rupees. In this way the grandfather had to sell Toto to him, to the Tonga driver, for only 3 rupees with the loss of 2 rupees. He bought Toto for 5 rupees, but he had to sell Toto for rupees 3. That's all. This is very interesting story. I hope you would have understood all the story and learn question answers and do all 5 questions of this chapter in your notebook. Thank you and have a nice day. God bless you.